Hello students, welcome to a new session of RS Bio Corner. Dear students, why I used the term new session? Because from today we will discuss each lesson according to the syllabus of CHSC Odisha, that is syllabus of plus 2 science bio students, as well as syllabus of different TET exams. TET exam means your OTT, CTET and OSS TET. Also my lessons will helpful for those students who are preparing themselves for CT or B.Ed entrance and who are attending different placement tests like your OAVS, that is Odisha Adarsh Vidyalaya, or contractual high school, or for JT. Hope this video will helpful for you, because during attending any TET exam you have to face 20 marks in each section from your content portion. So to achieve a better score, content plays an important role. Hope this video will helpful for you, and if you found the video useful, then don't forget to share it with your friends and subscribe the channel. So just observe these three pictures. In first picture there is a cow and a calf, and in second picture there is a dog with its puppy, and in third picture there is a mango tree with a baby mango plant. Okay, so what these three pictures explain, or what is the reason behind these three pictures? Let's discuss. So as we know that every living organism remains alive on the earth for a limited period of time, that grows old and then dies. In spite of this reality, a vast number of plant and animal species have existed on the earth for several years. It means that there must be some process that ensure the production of new organism in place of those that die. So टिके बुझिबा जे आमे जानिचे जे हमर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पई डिफरेंट लाइफ स्पैन सब थाए. सपोज हम ह्यूमन ना हमर लाइफ स्पैन रोज केते 70 to 80 इयर्स. ओके, अप्रोक्सीमेटली. सेमती एलिफेंट पई 60 to 90 इयर रोजी, और हमर काउ पई हला 20 to 25 इयर्स रोजी लाइफ स्पैन. गोटे गाय हमर 20 to 25 इयर पर्यंत बंची परिबो. ओके, सो दैट इज its lifespan. सेमती डॉग रा हमर रोजी 25 to 30, और हमर मैंगो प्लांट रोजी 100 to 200 इयर्स. ओके, सो टिके भाबिबा जदी हमर गोटे प्लांट और गोटे डॉग हमर एग्जिस्ट करूची 25 to 30 इयर्स, तो गोटे डॉग जदी तार डेथ हे गला बा से मरि गला, ताहले से जो डॉग रा स्पीसीज रहिला से डॉग रा वंशटा सेठी बंद हे जाय थांता. तो एबे आउ डॉग किछि हमर अर्थ रे थांदे कि, बट टिल एट डॉग्स आर स्टिल एग्जिस्टिंग. ओके, तो या पछरे कोन किछि गोटे रीजन अछि जोथि पय गोटे डॉग मरु बचे, बट तार जो स्पीसीज रहिले बा तार वंशटा रहिले से माने कंटिन्यू करछंती बा एक्जिस्ट करूछंती या अर्थ रे ए पर्यंत भी. तो किछि तो गोटे प्रोसेस होउची, किछि गोटे बायोलॉजिकल प्रोसेस होउची जोटा कि तार कोन से नंबरटा को exist करके रखी से हमर अर्थ रे. ओके, सो दैट बायोलॉजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. ओके, so let's define reproduction. That reproduction is the biological process which allows the production of a new organism from a existing organism. Okay, तो गोटे existing organism रो हमर गोटे new organism production को आमे कहिबा reproduction. Again there is a point that it allows the production of a new organism similar to it. एमती नुहे कि गोटे काउ ठारो गोटे पपी जन्म हो जिवो, या फिर गोटे डॉग टा गोटे काफ को जन्म दबो. ओके, तो इट अलाउज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स सिमिलर टू इट. ओके, तारी भली ही से आउ गोटे ऑर्गेनिज्म को जन्म दबो, दैट इज रिप्रोडक्शन. क्लियर? So it is clear from the above discussion that
For a species of plant or animal to continue living on this earth, it must reproduce itself. Okay, तो reproduce करिबा दरकार. It would be really interesting to know how reproduction occurs, then what processes are involved in reproduction, and what are the different modes of reproduction. So let's discuss. So in reproduction chapter, first we are going to discuss about the reproduction in plants. So reproduction in plants takes place through two processes. One is asexual reproduction and other is sexual reproduction. Okay, so in asexual reproduction mostly the vegetative parts take part. So what is vegetative part? Just look at here. Here is a picture of a plant where the parts of the plants are shown. Here is the root, stem, fruit, leaf and flower. These are the different parts of the plant. Okay, so among these parts, the leaf, stem and roots are comes under the vegetative part. Okay, and the flower is called as the reproductive part. So clear? Parts of the plant are categorized into two parts. One is vegetative part, whereas other is reproductive part. Okay, so in asexual reproduction mostly the vegetative parts take part, that is root, stem and leaves participate, whereas in sexual reproduction the flower participate. Okay, and another point that the asexual reproduction, in case of asexual reproduction, new plants produced without seeds. Okay, whereas in sexual reproduction the new plants are produced with the help of seeds of the plant. Clear? So let the asexual part, because according to our syllabus we have to discuss the sexual reproduction in plants. So let's discuss that part. So today we will discuss the different parts of the flower in interesting way, in a practical way. Hope you will enjoy it completely. तो पिला माने मोस्टली कन्फ्यूज होती बिटवीन द पेडिसेल एंड द पेटियोल. तो तुम मैंने कन्फ्यूज हम ना, से तुमको कंप्लीट प्लांटा ही देखौची. हियर इज अ ब्यूटीफुल हाइबिस्कस फ्लावर. विल डिस्कस इट्स ईच पार्ट. तो भावुची जो मानकर प्लस टू सरी जाइए से प्राक्टिकल याद आसीज. आउ जो मैंने कंटिन्यू करुँच प्लस टू से प्राक्टिकल क्लास कौन बोली जना पड़, बिकज कोरोना जो से प्राक्टिकल क्लास केबे भी अटेंड कर पारि ना जो मानकर प्लस टू सेकेंड ईयर. सो दिस ग्रीन पोर्शन ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज योर सेपल्स. ओके, पेडिसेल आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. सो दिस ग्रीन पोर्शन इज कॉल्ड एज योर सेपल्स. These colorful parts are called as the petals. Okay, and so these are the stamens. Okay, then जदि आमे ए पेटाल गुड़ा को सब काढ़ी दबा. ओके, एबे देखो completely आमर visible होची reproductive part टा, both female and male. These are the stamens and you can look here, this is the ovary portion or the female reproductive part. So just clear, as it is a bisexual flower, so both male and female reproductive parts are present here. Okay, so these are the stamens, the male reproductive part which has a filament, and at the top there is the anther. Diagram दे देछि भल से देखि परिबो. And female reproductive part रे mostly three parts रहउची. One is your style, this is style, and this is stigma and the ovary. Okay, diagram ने देछि clearly बुझी परिबो. जिनस टिके भूली गली. What is the function of these sepals? बेले बेले क्वेश्चन आसे. सेपाल रो फंक्शन कोन होउची ना, एटा हमको बर्ड रो प्रोटेक्शन करिवो. ओके, देखो ये गोटे स्टेम रे दुईटा बर्ड नहीं. देखो ये जो यंग स्टेज रे अच्छी आमर कम्प्लीटली एटा कौन करुच्ची ना, सेपालटा कभर करके पूरा बर्ड को रखुची. ओके, तो धीरे धीरे एटा तल को खसी खसी आसुची.
देख ये आम जदि सबतक आंसर को आम रिमूव करदेबा थ्रू अ फोर शेप देख कौन रही ना ओनली आमर रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्टा. So I hope you all are cleared about the structure of the flower. I hope you could get practical knowledge on different parts of the flower. Still there is necessity to understand the different parts of the flower through a diagrammatic representation, because in your exam रे बेले बेले पकई दोजी तुमरो एभली एमती डायग्राम देथिबो and you have to label the different parts. So for that you should also clear through this diagrammatic representation. So let's discuss. As you know, you can see here a hibiscus flower. This is the picture of a hibiscus flower, and mostly this flower has 5 important parts. Okay, just look at this picture. 5 important parts means one is your sepal, this leaf is also called as your organ portion of your flower is also called as your sepal. Then this is a stem or otherwise called as pedicel. So there flower ta amara attached hochi, that is also called as the pedicel or stem of the flower. Then the color parts, as we discussed, are called as the petals, then stamens and pistil. Stamen is the male reproductive part and pistil is the female reproductive part. Okay, then come to this diagram. Here is a section of a flower. Okay, so these color parts are sepals, and as we discussed, these green parts are the sepals, and this is the receptacle I have already discussed. And the most important parts are the male reproductive part and the female reproductive part. Okay, so these are the male reproductive parts, which are called as the stamens, and the stamen has two parts, one is filament and another is anther, whereas the female reproductive part has, this is the female reproductive part, which has 3 common parts. One is your stigma, then style, and then ovary. Okay, we will discuss it clearly in the next slide. So as we know that flower is a modified stem which functions as a reproductive organ. So let us discuss about this sexual reproduction in plants. So here are some terms which are associated with the sexual reproduction in plants. So just remember these terms. We will discuss these terms individually in detail. So here you just remember these terms. First one is pollen, then ova, then male gametophyte, then female gametophyte, then pollination, fertilization, then zygote, then embryo. So what happens in general? You all know that sexual reproduction occurs when a male gamete fuses with a female gamete and produces a zygote, and that zygote develops to an embryo, and that embryo gives rise to a new plant. You all know this and you all are associated with this concept, so nothing is new here, but the main thing is, so let's discuss the important part of sexual reproduction in plants, that is stamen, which is known as the male reproductive part. So here is a picture of a flower, and inside this flower there are the stamens which are arranged, and if you will see or observe the individual stamen, then that will like this. It has a long and slender stalk like structure which is called as your filament, and at the top there is a bilobed structure that is called the anther. Okay, and there are 2 thessos. This is the diathessos, or there are 2 thessa at the
top or found in the anther. तो ये जाए आम डिस्कसन कले जे स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन और द स्ट्रक्चर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स, दैट इज स्टैमेन हैज टू पार्ट्स, एंथर एंड द फिलामेंट. अच्छा आम आंथरटा बाइलोब्ड बोली जानिले एंड तार फिलामेंट रहिला बोली जानिले. देन आंथर भितरे आमर पोलेन ग्रेन फॉर्मेशन कोठी होची. मेन आमर एम कोन पोलेन ग्रेन हबा. ओके तो आंथर रे कोठी आमर पोलेन ग्रेन फॉर्मेशन होची, केमिति फॉर्मेशन होची सेटा ही आमे जानिबा. बिकॉज आमर फर्टिलाइजेशन पाई मेनली पोलेन ग्रेन ही दरकार. ओके तो ये देख दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आंथर. जदि आमे आंथर टाकू एमती ट्रांसफर सेक्शन ने काटिबा, ट्रांसफर सेक्शन बुझी पारछ एटा जेमिति कटा हेची सेटा हला ट्रांसफर सेक्शन. तो आकु आमे ट्रांसफर सेक्शन ने काटिला परे आमु सेटा एई भली देखा जिवो. Let the pollen sac and line of dehiscence that we'll discuss later. So you just see the structure. तो आकु ट्रांसफर सेक्शन ने काटिला परे एटा हमकु एई भली देखा जिवो. तो एटा आमे टिके बुझिबा. ताहले एटी देखिबा. एटी देखो ट्रांसफर सेक्शन ने आमर काटिला परे आंथर टाकू सेटा आमर एई भलिया देखा जिवो. ओके तो मेनली एई स्ट्रक्चर रे आमर एई चारिटा जिंस ही इंपोर्टेंट रहउची 1 2 3 4. तो जहाँ को मु डिफरेंटली ड्रॉ कर देइछे हाथे. तो माने वर्तमान एई जो लेयर गुड़ा सब अच्छी आकु सब ए लेयर मान को भूली जाओ. जस्ट तार इनर पार्ट को देख जे एटा एई भली हमर रहिला आंथर रो स्ट्रक्चर एमती कि नाही बाइलोब्ड अच्छी. क्लियर. तो आ भितर आमे कोन देखिबा ए जो गोल जिंस गुड़ा देखाउची राउंड शेप रो एटी देखो ए चारिटा एमती अच्छी. तो आकु आमे कहिबा जे स्पोरोजिनियस टिश्यू. एटा होची स्पोरोजिनियस टिश्यू. तो ए स्पोरोजिनियस टिश्यू भितरे आमर रहउची माइक्रोस्पोर मदर सेल. क्लियर. ए जो ग्रीन कलर रे जोडा मार्क हेची सेडा हला आमर माइक्रोस्पोर मदर सेल. ओके तो स्पोरोजिनियस टिश्यू भितरे आमर रहिला माइक्रोस्पोर मदर सेल. देखो स्पोरोजिनियस टिश्यू को कोन पई को होची बिकॉज़ माइक्रोस्पोर्स आर प्रेजेंट देयर. ओके तो स्पोरोजिनियस टिश्यू भितरे आमर रहिला माइक्रोस्पोर मदर सेल. देन अगेन ए माइक्रोस्पोर मदर सेल रो ही पोलेन ग्रेन डेवलप करिवो. नाउ क्वेश्चन अराइजेस ए जो माइक्रोस्पोर मदर सेल रहिला सेटा पुन डेवलप होबा पई आमर को भी जिंस डेवलपमेंट होबा पई तापा पई किछि खाद्य दरकार होची कि नाही, से खाइबो कि नाही. तो सेमती यार भी एठी पोलेन ग्रेन रो भी आमर नरिशमेंट दरकार बा ए जो स्पोर सब फॉर्मेशन होची तांकर भी नरिशमेंट दरकार. तो तांको नरिशमेंट पई कोन अछि ना एठी अछि टैपेटम. ओके सो जस्ट रिमेंबर इट. मोस्ट ऑफ द टाइम एटा शॉर्ट क्वेश्चन हिसाब रे आसे डैश नरिशेस द पोलेन ग्रेन सो दैट इज टैपेटम. ओके तो एई जाके बुझियला हमर आंथर रो एठी स्ट्रक्चर ता हमें देखिले. तो आंथर भितरे मेनली ए स्पोरोजिनियस टिश्यू चारिटा रोचंती है कि जा भितरे आमर माइक्रोस्पोर मदर सेल रोचे. आउ ए माइक्रोस्पोर मदर सेल ही आमर पोलेन ग्रेन को डेवलप होची. हाउ इट इज डेवलप्ड दैट विल डिस्कस बट टिल इट यू जस्ट क्लियर. ओके देन अच्छा एटा आमर ए जो आंथर स्ट्रक्चर रहिला भितर जिनस आमे जानि गेले. पुनी तार आउटर किछि कवरिंग रहइबो कि नाही निश्चिंत कवरिंग रहइबो. को भी सेल हो टिश्यू हो तार कवरिंग रहउची. तो एटा जो आउटर कवरिंग यार रहिला ताको आमे कहउचे एपिडर्मिस. ओके किछि कंफ्यूज होबार नाही. ए डायग्राम टा जहा एटा भी सेया जस्ट इनर पार्ट को तुमको क्लियर करिया पई मु एठी ड्रॉ करिछि. किछि भी कंफ्यूज होबनी भितरटा तुम माने एई भली भी ड्रॉ कर देले चलिबो. बा एग्जाम रे जदी एमती भी तुमरो प्रैक्टिकल रे हो बा थ्योरी रे हो मोस्ट ऑफ द टाइम एई भली स्ट्रक्चर आसे एंड तुमको लेवल करिया पई पड़े. तो एई भली भीतर डायग्राम टा कर देले चलिबो. ओके तो बाहर हमर कोन अछि ना आउटर मोस्ट लेयर दैट इज एपिडर्मिस. सब बेले जानु छ हमर बाहर को जो लेयर टा थाए सेटा एपिडर्मिस आउ इनर हमर रहिला एंडोथेसियम. क्लियर. देन स्पोरोजिनियस टिश्यू मु कहि देली, टैपेटम भी कहि देली. क्लियर. एबे हमें क्लियरली टिके बुझिबा जे पोलेन ग्रेन केमिति हमर फॉर्मेशन होउची और हाउ द माइक्रोस्पोर्स आर डेवलप्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल.
तो आम ये स्ट्रक्चर जो आंथर स्ट्रक्चर देखी आमर 4टा स्पोरोजिनियस टिश्यू थिला ओके। तो जस्ट तार गोटेर स्ट्रक्चर मु नहीं तुम मानक क्लीयर करने को चाहूँगी। तो ये 4टा जाकर भी डेवलपमेंट हम ओके। सो दिस इज वन स्पोरोजिनियस टिश्यू। तो गोटे स्पोरोजिनियस टिश्यू आम नेले ता भितर ये सब आमर माइक्रोस्पोर मदर सेल सब अरेंज्ड होइकी रहिछन्ती। देन एगेन आंक भितरु आमे गोटे माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर मदर सेल इज अदरवाइज कॉल्ड एज पोलेन मदर सेल आल्सो ओके। पोलेन मदर सेल एटा को मन रखिबो क्लियर। तो यहाँ आम पोलेन मदर सेल भी कहूचे। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जदि आमे गोटे नेले ओके एटा कौन अच्छी 2 एंड अच्छी ओके। तो आर जिते मेयोसिस हम मेयोसिस रे आमर कौन हम ना माइक्रोस्पोर टेट्राड इज कॉल्ड टेट्राड माइक्रोस्पोर टेट्राड ओके। देखो 4टा हो जाइए तो गोटे सेलटा आमर डिविजन होगी 4टा है ओके। एंड हाँ यहाँ आंथर जिते बड़े आमर यंग थिबो एई सब डेवलपमेंट होउची सेटा क्लियरली मन रखिबो ओके। देन आमर ये देख गोटे माइक्रोस्पोर मदर सेल मेयोसिस है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल प्लॉइडी होउची आमर 2n। तो यहाँ जो मेयोसिस होउची 2n टा कौन हो हाफ हो रिडक्शनल डिविजन जेहेतु। तो सबतक सेल टेट्राड देख माइक्रोस्पोर टेट्राड गोटे माइक्रोस्पोर मदर सेल रु आमर माइक्रोस्पोर टेट्राड होउची। टेट्राड मीन्स 4। तो 4टा माइक्रोस्पोर टेट्राड रहिले बर्तमान एमाने ए स्पोरोजिनस टिश्यू रे एई भलिया शेप रे रहिबे और से माने अलगा हेबेनी एमती लागी लागी की रहिथिबे ओके। तो एई 4टा को पुणी मु इंडिविजुअली एठी नेइची देखो ए जो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो एन वाला सेल थिले यांको पुणी मु अलगा अलगा करी नेइची ओके। तो अलग अलग करके नेले यही भाई 4टा रहिले आंको भितर पुणी मो इंडिविजुअल गोटे सेल नेली ओके। तो यहाँ गोटे सेल है तार ये गोटे न्यूक्लियस रहिला। देन ए सेलटा पुणी जो माइक्रोस्पोर टेट्राल इच सेल रु पुणी आमर कौन हम ना माइटोसिस हम ओके। तो माइटोसिस हेले तुम जानिच गोटे सेल रु आमर कौन हम गोटे रु 2टा सेल हम ओके। तो माइटोसिस है कौन हम ना आमर ये जो सेलटा थिला ये कौन हम ना 2टा सेल डिवाइड हो बर्तमान गोटे है ट्यूब न्यूक्लियस और गोटे हो जेनेरेटिव सेल ओके। देख टी लेट आमर पोलेन ग्रेन आसीनी। तो पोलेन ग्रेन कौटी आसबो ना आमर ये जो जेनेरेटिव सेल देछि देख ये जेनेरेटिव सेलटा आमर एगेन डिवाइड हम आउ से ही पोलेन ग्रेन डेभलप करिवो। एबे आमे कहबा एटा कोड जीवो तो यार भी काम अच्छी ट्यूब न्यूक्लियस रो भी काम अच्छे। तो ताको आमे नेक्स्ट स्लाइड रे देखिबा। तो ये जाए आमे डिस्कशन करले जे हमर हाउ पोलेन इज प्रिपेयर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस। तो टिके जस्ट रिवाइज कर दबा। एटी गोटे भलो डायग्राम अच्छी दे माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस आमे जो माइक्रोस्पोर टेट्राड रु गोटे माइक्रोस्पोर नहीं के बुझीतिले। तो ये माइक्रोस्पोर न्यूक्लियसटा जेते बेले डिवाइड होजी थ्रू माइटोसिस a microspore nucleus टा divided into 2 cells. One is your generative cell and vegetative nucleus or tube nucleus. Why it is called tube nucleus that we will discuss later. But here you just clear that mitosis through mitosis from one microspore 2 cells are prepared. Okay. Then this generative cell again through mitosis 2 is divided into 2 male gametes. Okay. तो आमर मेन जिनस कौन दरकार थिला गैमेट्स दरकार थिला। देखो स्पोर थिला आमर किंतु एबे हमें गैमेट्स पाइले ओके। दिस गैमेट्स आर पोलेन्स ओके। देन अगेन दिस इज बाइसेलुलर पोलेन एंड दिस इज ट्राइसेलुलर पोलेन। व्हाई देखो बाइसेलुलर मींस जस्ट टर्म रे ही लोचिची बिकॉज़ एटी आमर 2 cells are present in this pollen okay, generative cell and vegetative cell. So that is bicellular pollen. But here 3 cells are amaro generative cell ta divided into 2 male gametes. So now here 3 cells are present. That's why it is tricellular pollen. So till late pollen is prepared. Now question arises that ए जो pollen टा amaro या भितरे डेवलप करिगला बर्तमान मेल गैमेट्स फॉर्मेशन ऑलरेडी हेई गलानी बट सेटा केमिति हमर जाई
फीमेल पार्ट पाखरे पहुँचब फीमेल पार्ट पाखरे पहुँचले सीना तापर आमर फर्टिलाइजेशन हम और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टा आगो चलो तो ये आमर तो ओनली मेल गैमेट ही फॉर्मेशन हो गला एबे क्वेश्चन आसुची कि एटा बाहर को केमती आसीबो तो टी लेट आमर आंसर टा ऑलरेडी मैच्योर हो जाइथिबो ओके तो मैच्योर हो गला बेलू आमर जोड़ा सब एपिडर्मिस आउ एंडोडर्मिस थिला मु जोड़ा स्टार्टिंग रे जो पिक्चरटा देखी स्पोरोजिनियस टिश्यू बेले सेटा सब सुखी जिबे बा सुखी जिबे ओके तापरे आमे एटी देखिबा जे हमर पोलेन नो जो स्ट्रक्चर रहिला ता भितरु हमर मेल गैमेट्स केमिति बाहर को आसीबो नाउ लुक एट हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए पोलेन ग्रेन ओके सो जेमति आमे देखिले कि पोलेन ग्रेन हैज टू सेल्स हमर एटा जेनेटिव न्यूक्लियस अछि एटी वेजिटेटिव न्यूक्लियस अछि ओके तार आउटर पार्ट टाको आमे कहूचे एक्साइन देखो इनर पार्ट वर्तमान आमे क्लियर हो गले भितर कौन अच्छी वेजिटेटिव न्यूक्लियस रो काम कौन जेनेरेटिव न्यूक्लियस रो काम कौन आमे सब क्लियर हो गले बट एटी मेन थिंग कौन ना यार आउटर कवरिंग टाको आमे कहूचे एक्साइन एंड द इनर वन इज इंटाइन मन रखिबा जे एक्साइन टा हमर होचे बहुत हार्ड ओके हमर पोलेन टाको पोलेन ग्रेन रो एक्साइन पार्ट टा होची बहुत हार्ड सॉरी दिस इज हार्ड नॉट हार्ड दिस इज हार्ड ओके तो हमर ए एक्साइन टा इते हार्ड कोन पई होची बिकॉज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस स्पोरोपोलेलिन ओके समस्त मन रखिबा एटा बहुत हमर टीटी पिलांग पई भी मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन ने आसुची टीटी एग्जाम रे आउ +2 पिलांग पई भी द स्पोरोपोलेलिन इज प्रेजेंट इन द एक्साइन पार्ट okay so remember this term sporopollenin then what is this sporopollenin and what is its function sporopollenin is the resistant organic material that withstand high temperature and strong and acids alkaline okay तो एटा कोन होची ना हमर एमिति गोटे मटेरियल जहा कोथरे भी हमर डिजॉल्व होवनी कि तार केहे भी किछि क्षति करि परबनी जेते टेम्परेचर दियो स्ट्रांग एसिड दियो ओके अल्काली दियो तो किछि क्षति करि परबो नाही सेहि पई हमर पोलेन टा प्रिजर्व हेकि रहि पारे एज अ फॉसिल जानिथिबो एटा माने पोलेन ग्रेन टा हमर फॉसिल हिसाब रे रखा जाय व्हाई ड्यू टू दिस स्पोरोपोलेलिन माने एते हार्ड कर रखि थाए एटा कोथरे भी नष्ट होएनी ओके तो वर्तमान क्वेश्चन आसुची जे जदी एते हार्ड पार्ट तार एक्साइन ने अछि देन हमर भितरु ए जो मेल गैमेट्स गुडा केमिति बाहरिबो ताहले बाहर को ओके तो सेथि पई कोन हेची ना हमर ए एक्साइन रे गोटे गोटे जागा रे एमति सब होल हेकी अछि ओके पोर लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर ओके दैट इज कॉल्ड योर जर्म पोर क्लियर ए जो जर्म पोर अछि ए जर्म पोर दे हमर जो मेल गैमेट एटी फॉर्मेशन हेथिबे एठी जेनेटिव सेल लु जो हमर दीटा मेल गैमेट फॉर्मेशन हेथिबे ओके दे विल कम आउट थ्रू दिस जर्म पोर क्लियर तो जहाँ भी हमें टीलेट डिस्कशन करले तार गोटे कंक्लूजन करबा टिके रिवाइज भी करबा ओके तो हमें माइक्रोस्पोर मदर सेल लु हमर पोलेन ग्रेन हे गला पोलेन ग्रेन नो स्ट्रक्चर हमें जानले जे एटा हला हमर एक्साइन एटा हला इंटाइन ओके देन हां टिके भूली गली जे इंटाइन टा होची हमर मेड अप ऑफ व्हाट पेक्टिन एंड सेलुलोज ओके पेक्टिन एंड सेलुलोज एटा भी मन रखिबो क्वेश्चन आसे एथरो जे हमर एक्साइन टा कोथरे एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेलिन and your intine is made up of pectin and cellulose okay then germ pore विषय भी हमें क्लियर हेले एटा तो साइटोप्लाज्म तार रहिला देन हमरो एठी न्यूक्लियस ता थिला न्यूक्लियस ता एठी डिवाइड हे किरी हमरो गोटे हला ट्यूब न्यूक्लियस हला आ एठा गोटे जेनेटिव सेल हला ओके ट्यूब न्यूक्लियस हला आ जेनेटिव सेल हला ओके देन एटा आउट के डेवलप हला एठी डेवलप हला परे देन हमर गोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर टा दोची देखो हमें जो या पूर्वरु पढिले नि गोटे थिला जे बाइसेलुलर आ गोटे होची ट्राइसेलुलर पोलेन हमें पढिले ओके तो जनरली ट्राइसेलुलर आ गोटे ओके
तो ये जो बाइसेलुलर पोलेनटा आमर 60% एंजियोस्पर्म रे मिले ओके आम एंजियोस्पर्म रे ही डिस्कशन करूचे ना द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स तो ये 60% प्लांट रे आमर बाइसेलुलर पोलेन ग्रेनटा मिले एंड रेस्ट जो 40% रहिले सेथरे ट्राइसेलुलर मिले तो ट्राइसेलुलर कौन ना यही स्ट्रक्चर हो जाए ट्राइसेलुलर केस रे कौन हुए ना आमर सेटा बाइसेलुलर स्टेज रे थाए जेते बेले सेटा ई स्टिग्मा पाखरे आमर पहुँचे एटा आमर रहिला तो एटा मेल फीमेल सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहिला तो एठी जेते बेले आमर पोलेन ग्रैंड आसकी पड़िला ओके वन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड हियर देखो ए भलिया ओके तो एटा पोलेन ग्रेन आसतिला पोलेन ग्रेन ने एठी आमर दुईटा सेल थिला ओके गोटे वेजिटेटिव सेल थिला आ गोटे जेनेरेटिव सेल थिला तो ए जेनेरेटिव सेलटा कोन करबो एठी जेते एंट्री करूची आमर फीमेल जो ओभारी भीतर को सेतेबेले से कोन करबो ना एठी जेनेरेटिव सेलटा आमर डिवाइडेड इनटू टू मेल गैमेट्स ओके सेटा एठी पहुंचिला परे ही होउची तो ट्राइसेलुलर एटा हैला आमर ट्राइसेलुलर पोलेन ग्रेन ओके तो ट्राइसेलुलर टा ओनली 40% प्लांट रे मिले एंड बाइसेलुलर टा हमरो 60% प्लांट रे मिले एटा क्लियर होबो आ मन रखिबो तो ए डायग्राम रे वर्तमान किसी डिफिकल्टी थिबो बोली मु भाबुनी because you are associated with all these terms and already clear about all the terms only this tube like structure was remained which I discussed okay तो जेनेरेटिव सेल रही गला वर्तमान हमर ट्यूब न्यूक्लियस रही गला ओके तो ट्यूब न्यूक्लियस को भी हमर कह जाउची कोन सेटा वेजिटेटिव सेल ताको काहे की कह होची ना वेजिटेटिव सेल ता हमर सबले कोन करे ना तार हमर जोटा की नरिशमेंट पाए सेटा खाद्य तार रखी रखी के चले ओके तो हमर जेनेरेटिव सेल कोन करतला ना जनरेट कला मेल सेल जोटा मेल गैमेटा को जनरेट कला ओके So I think you all are clear about the development of male gametophytes. तो ऐसे ही हमें डिस्कशन कर ले जे how your pollen grains are developed और आमर माइक्रोस्पोर मदर सेल रु स्पोरोजिनियस टिश्यू रु आरंभ करी माइक्रोस्पोर मदर सेल देन माइक्रोस्पोर देन जेनरेटिव सेल देन योर मेल गैमेट तो आमर स्पोरोफाइट रु गैमेटोफाइट रे हमें आसी पहुंच गले ओके स्पोर रु हमें आसी गैमेट्स पाखरे पहुंच गले okay which is known as your development of male gametophyte दीटा जो मेल गैमेट पाइले सही पर्यंत ही हमें कहबा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट ओके तो हियर आर सम फैक्ट्स ऑन पोलेन विषय किसी फैक्ट्स अच्छी जोटा हमें जानिबा दरकार प्लस 2 पिलांग पई न हेले भी हमर टिके हायर लेवल पिला बा टीटी पिला सीटीबी एंट्रांस जो माने दउचंदी सेमानम पई भी आवश्यकता अछि पोलेन विषय किसी फैक्ट्स जानिबार बिकॉज ता भितर बेले बेले क्वेश्चन आसी जाउची सो फर्स्ट वन इज योर पोलेन एलर्जी ओके तो हमर जो पोलेन रहिला पोलेन ग्रेन रो हमर बेले बेले कौन हुए ना किसी प्लांट रो हमर पोलेन ग्रेन थाए जोटा कि हमर कजेस सिवियर एलर्जीज ओके एते एलर्जी करिवो जे लाइक हमर amaranthus इज एन एग्जांपल ओके तो amaranthus रो जो पोलेन ग्रेन ता से कौन करिवो ना हमर एलर्जी करिवो को भली एलर्जी ना रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हमर आस्थमा हैला ब्रोंकाइटिस हैला ए भलिया सब डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जोटा रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज सब सेटा करेबो ओके देन योर देखो गोटे रे किछि किछि प्लांट रो हमर पोलेन रहिला जोटा कि हमर एलर्जी करोछि ऑन द अदर हैंड देयर आर आल्सो सम अदर पोलेन प्रोडक्ट्स ओके तो किछि प्लांट रो पोलेन भी अछंती जहार प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज न्यूट्रिशन सप्लीमेंट इन वेस्टर्न कंट्रीज ओके तो एबे कोन करा होछि ना पोलेन नो प्रोडक्ट सबु हियर पोलेन नो प्रोडक्ट सबु आर रिच इन न्यूट्रिशन ओके तो वेस्टर्न कंट्रीज रे हमर कोन करा होछि ना दीज आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स ओके फॉर द एथलेट्स माने इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द एथलेट्स हमर जो माने खेलुचंती तांकर परफॉर्मेंस इंक्रीज करिया पई तो ओवरऑली एटा न्यूट्रिशन हिसाब रे आको यूज करा जाउची पोलेन प्रोडक्ट्स को सब ओके देन कम्स टू
पोलेन भायाबिलिटी कौन ना आमर एमती नुहे कि पोलेन ग्रेन और आमर पोलेन फॉर्मेशन हो गला मेल गैमेट फॉर्मेशन हो गला तो जिते बड़े भी हेले से जदि आमर स्टिग्मा रे पहुंची जीवो बा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रे जाई पहुंची गला तो सेटा फर्टिलाइजेशन करदेव या जर्मिनेट करदेव या आमर रिप्रोडक्शन प्रोसेस को आगो को नहीं जीवो सेमती नाही पोलेन न आमर गोटे भायाबिलिटी थाए भायाबिलिटी मीन्स द पीरियड फॉर व्हिच द पोलेन ग्रेन्स रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन लैंडिंग स्टिग्मा ओनली से स्पेसिफिक टाइम पीरियड भीतर ही से माने जदि आमर स्टिग्मा उपरे लैंड करंती देन ओनली दे कैन जर्मिनेट और देन ओनली दे कैन फर्टिलाइज ओके और आमर रिप्रोडक्शन प्रोसेस टा आगो को बढ़ी पारिबो देन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज योर पोलेन बैंक सबु बेले सबु एंट्रांस रे प्राय देखा जाए जे पोलेन रिलेटेड जदि क्वेश्चन आसे क्रायो प्रिजर्वेशन रिलेटेड क्वेश्चन निश्चिंत आसुथिबो ओके तो क्रायो प्रिजर्वेशन टा कोन बुझिबा ना हमर स्टोरेज ऑफ पोलेन ग्रेन ओके पोलेन ग्रेन टा को हमर for years it can be stored in which in liquid nitrogen okay liquid nitrogen ne amara under -196 डिग्री सेंटीग्रेड रे आमर पोलेन गुड़ा को स्टोर करी बा प्रिजर्व करी रखा जाए व्हिच इज कॉल्ड एज क्रायो प्रिजर्वेशन ओके तो क्रायो प्रिजर्वेशन थ्रू रे आमर पोलेन को स्टोर करी रखा जाए एंड लेटर इट इज यूज्ड फॉर द प्लांट ब्रीडिंग क्लियर सो भाबुजी तुम मैंने मेल गैमेटोफाइट विषय रे आउ पोलेन नो सब डिफरेंट यूज विषय रे क्लियर हेलो in the next video we'll discuss about the development of the female gametophyte clear